podcast. Hi Himanshu, how are you? All good this side. How's it? I'm all good as well. So सेम थीम है पॉडकास्ट की, जैसे हमारी कन्वर्जेशन अभी हो रही थी, ठीक है. Mm-hmm. सो वही चिल आउट, कुछ नहीं, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है. अपने थॉट्स शेयर करेंगे. आई नो यू आर बिल्डिंग समथिंग, ठीक है. Mm-hmm. उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. मैंने थोड़ा बहुत चेक करा है, फाउंड इट मी लाइक नेवर थॉट इन दैट मैनर कि वहाँ पे कुछ स्पेस में हो सकता है, ठीक है. सो उसके बारे में बात करेंगे क्या है. देन लेट्स जस्ट स्टार्ट. या Okay, so let me introduce my startup as apparently वो sector हमेशा से थोड़ा सा neglected रहा है. So it's a startup for singers, Indian aspiring singers. तो usually क्या होता है? Let's start with the problem. कि usually क्या होता है, एक singer को ना 3 घंटे का event करने के 1500 रुपए मिलते हैं. बस सिर्फ 1500 रुपए 3 घंटे का इवेंट करने के एक टाइम के. एंड देयर इज नो गारंटी कि तुम्हें अगला इवेंट मिलेगा. देयर इज नो गारंटी तुम्हें अगला कोई शो भी मिलेगा या नहीं. एंड दीज पीपल डू इट स्टैंडिंग, यूजुअली हैव अ बैंड अलोंग विद देम एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर ओन अलोंग विद द टैलेंट. और रात का टाइम होता है यूजुअली. सो दे डू नॉट हैव वन. जब हमने जब यूजर्स से बात की, वी टॉक टू समवेयर अराउंड 300 यूजर्स. जब हमने उनसे बात की, नंबर वन थिंग वी फाउंड आउट वाज कि इनके पास वैलिडेशन नहीं है. दैट इज दे वांट other people to recognize them. They want other people to acknowledge their talent. Number one. Number two, they do not have earning potential. They want to pursue singing as a career, but they do not have the potential to pursue singing as a career. Max, everyone does it for 25 till 25 of age. That is the maximum they try to pursue it as a career. After 25, they have to leave it to get some stability in their lives. They'll either join some XYZ jobs. Number three, they do not have recognition. They do not know other singers, other music producers, label records, and all these people, right? So what we are doing is we are providing a platform where they can come, they can earn. How they're going to earn? आपस में singers compete करो. We have the total as an agent, like a platform where these at max only 5 people can compete in one competition. So 5 people compete among themselves, win a cash prize, and go back home. So in a matter of 30 minutes, they are able to earn at least what they have put in. वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें 3 घंटे का 1500, यहाँ पे आधे घंटे का अगर 500 भी वो कमा रहे हैं, that's enough for them. Plus sitting at home, anytime you can do it, anywhere you can do it. The music is already provided in the app itself. But and another plus point is for women. लड़कियों का रात को most probably tier 2, tier 3 cities में बाहर इतना जाने नहीं दिया जाता, वो भी रात को. And then another thing, when we talk to the customers, we got to know कि लड़कियों को singing इतने अच्छे से pursue भी नहीं करनी दी जाती. As in, as soon as they turn 22, 23, their parents start saying either get a stable job or study or get married. You do not have singing as an option over there. Even we talked to some of them and they were literally into tears saying कि हम लोग socials पे भी नहीं post कर सकते because our parents don't allow us. So this is the problem we are trying to solve, and that has been so far the journey. And since the app is currently in the development phase, so we are building a community of singers, and because community management becomes a little tough when it comes to a very small team which we have right now. So we have almost around 130 plus people whose content we have gone through, talked to them, make them understood what our company is doing, and they have agreed to be the early adopters of our product. That's cool. So, that's cool. इसमें लेकिन कंपटीशन में ऐसा तो नहीं है ना कोई नया कर बैठी है जो रोने लग जाएगी. नहीं, that is the best part. ये इतनी सिंपल सी चीज थी. It was just a neglected sector. ये इतनी सिंपल सी चीज थी, अभी तक एक भी बंदा नहीं कर रहा. Like there are different forms of indirect competitors जो कि हॉबी के फॉर्म में कर रहे हैं, बट कोई भी उनको earning potential नहीं दे रहा. Like there's Mule, there's Star Maker, there's Spotify. Rather, Spotify is giving somewhere around $0.0013 per stream. If you convert it in rupees, तब भी कुछ नहीं आ रहा per stream के basis पे. और जब तक recognition नहीं है, none of these factors, none of these platforms
without considering recognition, they do not provide you earning potential. You cannot earn from it. Rather, if you would know, there is this guy on LinkedIn. He is a TEDx speaker and all those fancy titles. Even he posted a few days ago that he is into music and he had 4 songs, out of which only one got approved by Spotify. None of others. Like all 3, best quality, yet not getting confirmed. Like they are not up on Spotify yet. So that's a big, huge issue. Like people like him have such issues. Imagine what a small scale singer would have. Like he doesn't have fancy studios to make his songs on. All he has is his laptop, and max he would be doing his own production, he'd be doing his own editing in his videos. Can understand. Mostly one more thing, like out of curiosity I'm asking this, कि mostly जो entrepreneurs problem solve कर रहे होते हैं उनकी खुद की होती है, तो are you a singer? Not professional, but I have a sister who is a who is a singer, and so does my co-founder. He also has a sister who is a singer, and we saw this firsthand that especially during COVID, the stage was taken away from them. So they were at home and they were not able to actually earn what they were already earning. If they were earning 1,500 for a 3-hour show, they were not able to earn even that because of COVID. Now तो still these things are getting stabilized, stage वापस आ रहा है. पहले तो वो भी चला गया था, so they were totally at home, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और socials इतने ज़्यादा उनके बने नहीं हुए कि ठीक है we have like somewhat in 15K or 100K followers कि हमें revenue आता रहेगा, वो भी नहीं है. So they're totally at home, sitting, doing, I don't know doing what, like they could do nothing. At max what they could do is get their community, like 4 to 5 friends on a meet and try to sing amongst themselves. That also is just a kind of relaxation for them. Yes. ये हो रहा था. Cool. It's actually your problem then. So this was cool, but I think a unique kind of a problem. I haven't heard it before. Yeah. But yeah, you are a Gen Z entrepreneur. I was, yes. You are in college right now? No, I graduated this year. All right. Cool. So जो स्टार्टअप था वो कॉलेज के साथ चल रहा था या बाद में? हाँ, पहले ही साथ. मैनेज कैसे हो रहा था? मैनेज ऐसे हो रहा था कि I am a chartered accountancy student. All right. तो मेरा जो कॉलेज था, it was already a distance college. एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद हमें 3 साल ट्रेनिंग के लिए दिए जाते हैं, आर्टिकलशिप, जिसमें हम आर्टिकलशिप करते हैं. सो आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप. उसके साथ साथ आई गॉट इंटरेस्ट इनटू मार्केटिंग, सो आई शिफ्टेड वेज इनटू मार्केटिंग. गॉट इट. दिन में आई एम डूइंग आर्टिकलशिप, रात में आई एम डूइंग दिस मार्केटिंग. लाइक आई एम लर्निंग, आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप. ये सब चल रहा है. Cool. उसके थोड़े टाइम बाद आई स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स. And then I decided to quit the internship that I was doing and have my own agency along with the articleship going on. And then after a point of time, I had to stop articleship because agency अच्छे से चल रही है. I dropped chartered accountancy. I started doing my agency. Agency करते करते I came across this problem. Then I started building, like जब तक users से बात कर रहे थे, because it's a bootstrap thing till now. And we are planning to make it bootstrapped for another few months. So हमारा उस टाइम पे we were talking to users. दिन में किसी भी टाइम उनको कॉल आ जाता है तो we are ready to talk to them. Users से बात करी because we were not sure of the problem. हमें पता नहीं था कि problem है क्या. Is it the earning potential? What is the major problem? So it was like an onion. You have to peel it off. इतनी नीचे जाके the problem came out to be money recognition cycle, क्योंकि एक cycle है. That was the major problem कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा recognition के लिए, ताकि आप marketing कर सको, अच्छे गाने बना सको, videos अच्छी कर सको, quality अच्छी ले आओ, auto tunes लगा लो, और आपको ज़्यादा recognition चाहिए ज़्यादा पैसा पाने के लिए. अगर आपके पास followers ज़्यादा तो पैसा भी ज़्यादा आ जाएगा. तो ये एक cycle था जो तोड़ा भी नहीं जा सकता किसी भी तरीके से. तोड़ा भी नहीं जा सकता. सो इसके अंदर आप इट्स अ स्पाइरल काइंड ऑफ साइकिल. आप सिर्फ ऊपर बढ़ सकते. प्रॉब्लम ही बन गई ना कि पैसा है तो फॉलोअर्स ला सकते हैं, फॉलोअर्स है तो पैसा ला सकते हैं. एग्जैक्टली.
तो इट बिकेम अ स्पाइरल कि आप इसके अंदर से भाग नहीं सकते हो, आप मैक्सिमम ऊपर नीचे जा सकते हो. सो व्हाट वी आर डिसाइडिंग टू डू इज, अगर कोई सिंगर यहाँ पे है स्पाइरल के, वी आर ट्राइंग टू टेक देम हियर, एंड फिर धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, एंड देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ के बाद एक स्मूथ सेल आ जाती है. लाइक देयर इज ऑलवेज इन अ जर्नी ऑफ अ सिंगर, देयर इज अ बम्पी रोड, देन देयर इज अ ग्रोथ के भी एक पॉइंट तक वो बम्पी ग्रोथ होती है, where he's going down, he's going up. There will come a point जहाँ उसके बाद उसकी स्मूथ सेल होती है, up, and then the peak, and then there's a decline stage जहाँ पे वो उसकी रिटायरमेंट है. So we are taking those singers through that cycle to that one particular point जहाँ पे उसकी बम्पी रोड खत्म हो जाए, जहाँ से उसको स्मूथ सेल चालू हो जाए. उसके बाद फिर वो आराम से करता रहेगा अपना. We are done. बेसिकली वो प्लेटफॉर्म में रहेगा ऑब्वियसली, बट उसका काम खत्म हो गया एक तरह से. ही कुड टीच अदर पीपल ऑब्वियसली. ऐसे वाला सीन है. That's true. और YCA? YCA, वेल +2 के अंदर आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि मेरे को SR में जाना है, SRCC. आई वाज लाइक मेरे को SRCC में जाना है. +2 पूरी ऐसे अच्छे से काम करते रहे, पढ़ते रहे, and I scored somewhere around 96.4, I guess. ऐसा कुछ स्कोर था. In short, did not get into SR. So family has a chartered accountancy background. So they said that was the only career option I had. Then you don't have any option. चलना है तो चलिए. Then I didn't even knew about startups, and I think if I would not have been into CA, I would not have known about startups at all. 100%. एक प्रीवियस हमारा पॉडकास्ट हुआ था शांतनु सर के साथ, सो वो भी CA हैं. सो बेसिकली मैं भी CS फाउंडेशन क्लियर हूँ. इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट. नहीं, मैंने इंटरमीडिएट कर लिया है. नहीं, मैं जब CA में घुसा, सो 2009 CA में 2019 में घुसा था. सो वी आर एट द काइंड ऑफ सेम लेवल. सो लाइक मैं भी अभी ग्रेजुएट हूँ. सो 2019 में घुसा था, तो तभी मैंने भी अपना स्टार्टअप्स के बारे में मेरे को तभी पता लग गया था 2019 में. तो CA वाज लाइक कि स्टार्टअप्स समझ नहीं आता किसी को यहाँ. तो CA तब तक करो जब तक कुछ वहाँ से दिखता नहीं है. सो वो वाला सीन था. तो लेकिन मेरे साथ ये भी था कि मैं एक टाइम ब्रैकेट लेके चलता हूँ कि इसने में हुआ तो नहीं है, नहीं हुआ तो एग्जैक्टली. आई एम आल्सो वर्किंग लाइक दैट कि इतने टाइम में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो we'll start looking for other ways. Exactly. So वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई गेस CA में. जितना जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाए वो अच्छा है. अगर जनता नहीं जानती तो हाल बहुत बुरा है यहाँ पे बच्चों का. Exactly. लगे मतलब हमारे सर बता रहे थे, एक जना था, उसने कितने 10 अटेम्प्ट्स में क्लियर करा था. 10 फिर भी बहुत जल्दी है. I had people जो कि they were like 30 years old. I am now 21. Like a few days ago I turned 21. उससे when I was doing my intermediate, I was somewhere around 19. So I had people in my that class of 28 years old studying what I'm studying, and they were like कब से एग्जाम दे रहे हैं लगातार. So it was like okay, ये तो नहीं करना है, कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं करना है. इतनी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए बस. हाँ, इससे अच्छा I'll just drop it and I'll do something else. सही है. एग्जैक्टली मेरे सर ने भी ये चीज़ बताई थी कि एक बारी उनके साथ क्या सीन हुआ था. उनके स्टूडेंट थे तो वो भी अटक गए हुए थे. तो थोड़े टाइम बाद वो स्टूडेंट और उनके बेटे साथ आ रहे थे. सो बेटा फाउंडेशन के लिए आ रहा था, फादर वाज इन फाइनल. Nice. सो वो चीज़ भी हुई थी. तो या इट्स काइंड ऑफ पीपल गेट स्टक अ बिट. Yeah, it's a difficult course. It's like one of the most difficult courses in India. Yeah, that's ऐसे वो लगन चाहिए, दिन रात बैठ के पढ़ते रहो, ऐसे वाला सीन है. हाँ सही है. Like but true. Like you are a like CA turned entrepreneur, then I would say. ठीक है. नहीं अभी पूरा CA नहीं हुआ. ऐसे I will lodge a case when if I started using CA. Partial CA turned entrepreneur. Yeah, partial CA turned entrepreneur. That's good. That could be said. Rather एक स्टेज बीच में मिस हो गया. Startup this marketing. Partial CA turned agency owner turned entrepreneur. That's cool. Better. सही. Even जब मैं एक बार नीरज सर से मिला था, तो वो भी बता रहे, कह रहे कि जो CA के बच्चे होते हैं जनरली वो लेके बैठ जाते हैं कि CA लाइफ है,
Yeah. पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए वो सब चीज़ें. दैट्स ट्रू. अपार्ट फ्रॉम द सी ए टॉपिक नाउ, ऑडियंस जो नहीं है सी ए की वो थोड़ी बोर हो गई होगी, ठीक है, और ठीक है. टेल मी द रीज़न, लाइक कि मार्केटिंग में मज़ा आ रहा था, ठीक है, एजेंसी सेटअप हो गई थी, पैसा आ रहा था, तो फिर यू आर अर्निंग, लाइक, ठीक है, इवन दो यू आर हैविंग दैट प्रॉब्लम जो फेस हुई, लेकिन स्टिल यू आर हैविंग कैश इन हैंड, ठीक है. So why then going with the problem? Why not continuing and scaling that agency to a big stuff? So, see, that is when I met my co-founder. I have a co-founder. I met my co-founder, and उस time पे I was taking up, जब मेरी agency थी, I was taking up startups, and I was helping them into their marketing, because startups के पास इतना fund नहीं होता to set up an entire marketing division starting में, right? So what they could do is they could easily afford कि हाँ ठीक है एक agency को outsource कर दो. This was a very big market, and in actual it is a very big market. So I was doing that. तो he was a startup owner. उसने लिखा हुआ है ऐसे founder and Kalakun. So I was talking to him, I was conversing with him, and he said, उसने मुझको ऐसे पूरी problem समझाई, and then it clicked me कि यार उसके साथ भी तो यही हो रहा है. Then I called my sister and asked कि यार तेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही है. And she was like, उसने मुझको ऐसे 2 घंटे का लेक्चर दिया कि हाँ ये चीज़ें होती है. I was like okay. I got on a call with him as a normal meet पे, and he gave me, I don't know what he was thinking. Maybe he was already thinking कि इसको co-founder के form में लेके आना है या कुछ. So उसने मेरे को ऐसे एक छोटा सा presentation दिया, and he was like ऐसा है, and I was like okay fine. थोड़ा दिन बात करते रहे about the same thing, like उसी के बारे में, and then बात करते he was like, do you want to join me as a co-founder? And I was like, okay, I can try, but I'm not committing anything at the moment. If you are thinking कि मैं सारा टाइम तुझे दे दूंगी, ये मुझसे ना हो पाएगा अभी. तो अभी मेरी खुद की एजेंसी भी है, तो I'll cater to that as well, but I'll be there whenever you need me. Marketing चाहिए, I'll do it. I'll not even charge you, I'll do it. And ऐसे will go ahead. ऐसे, this was what I thought at that moment. फिर चलता रहा. Obviously स्टार्टअप के अंदर जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको थोड़ा ना उससे अटैचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है. True. Right? तो उसके साथ like when I was talking to people and everything started happening, 6 महीने गए, I was like, I'm going to leave this and I'm joining this full time. And then I just served my client, जितने भी मेरे clients थे, I told them कि ये मेरा note, like I'll be continuing for another 2 months. That is for you to find another agency or something, और आप ढूंढ लीजिए, मैं जा रही हूँ अपने खुद के उसमें. फिर उनको ऐसे करके उनका notice period serve करके I came here full time, and I was like, अब तो यही करना है, अब तो इसी को बढ़ाना है. सही है, cool. ऐसे क्या ये. Or you are also like into LinkedIn Accelerator program. Tell me a bit more about that. कि वो क्या है, क्या सीन है उसमें. Okay, so it was something. It came rather मेरी पूरी LinkedIn की journey started as a FOMO. I just came on LinkedIn. I was not very active on socials, any social. So I just started using LinkedIn as a part of my internship that I was doing. उसके अंदर outreach करना था लोगों को. So I started using LinkedIn. वहाँ से चालू किया. I added a lot of software engineers, because I didn't know what to do or what not to do. I added a lot of software engineers, and they were creating content. I didn't knew कि सब content नहीं बना रहे हैं और सिर्फ कुछ लोग content बना रहे हैं. I started seeing a lot of content, and I was like, मुझे भी करना है, लेकिन time नहीं है. मुझे भी करना है, लेकिन time नहीं है. After a few months, I decided कि यार अब तो शुरू करना पड़ेगा. थोड़ा सा कंटेंट बना लो पहले से, उसके बाद डालना चालू करेंगे. I started it on weekly basis. देखा एंगेजमेंट नहीं आ रही, बिकॉज स्टार्टिंग में एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है. तो सिर्फ मैं लाइक कर रही हूँ, मैक्स भाई का फोन छीन के भाई के फोन से लाइक कर रही हूँ, बस ये 2 चीज़ें हो रही है. एंड देन केप्ट ऑन डूइंग इट. फिर धीरे आई स्टार्टेड टॉकिंग टू वन ऑफ ऐसे सीए का एक बंदा था. आई स्टार्टेड टॉकिंग यार तेरी पोस्ट पे तो इतनी एंगेजमेंट आ रही है, मेरी पोस्ट पे एंगेजमेंट ही नहीं आ रही. एंड ही वाज लाइक, जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स वी हैव, तेरी ऑडियंस नहीं सही होगी probably. I was like, maybe.
And then I started filtering and doing all the stuff. थोड़ी सी audience बनाई, and then it started happening. And I added one of my early connections was Krusha Sajrani Lakhani, right? So उन्होंने ना जनवरी या फरवरी के बीच में ना she posted something about creators program. LinkedIn को उस टाइम पे कोई creators program भी था. And then there's another woman called Shubhangi, उसने भी post करा creators program. So I was like, ये creators program है क्या? I searched it and मुझे creators program तो नहीं मिला, मुझे creators accelerator program मिल गया. I said apply कर देते क्या ही चला जाएगा. सही है. And then you got it into by chance. Exactly, and I got it. I was like, okay, this was this easy. But maybe it was just not easy. Like when I started conversing with people, all the Leakapians, the 200 people, I understood कि ठीक है, इतना भी easy नहीं था, मुझे easy लग रहा था, इतना easy था नहीं सबके लिए. Like recording a video and doing all those things. And then Leakap के अंदर what we did was we took up a project. हमने खुद से अपना एक project लिया था 10 weeks का. In 10 हफ्तों में we'll make this thing come true. कि ये वाली चीज को हम लोग लेके आएंगे, ये वाला content idea हम लोग लेके आएंगे. So my content idea was marketing अच्छी आती थी, तो my content idea was कि brands की marketing जैसे होती है ना, उसको पूरा अच्छे से break down करेंगे उसका. This was my idea. दिमाग में कुछ नहीं है कि कैसे how am I going to present it out, कि लोगों को बताऊंगी कैसे, बोर हो जाएंगे अगर एक बार इतना लंबा चलेगा तो वो नहीं पता. So somehow I started talking to these people. हमारे थोड़े सेशंस हुए with the mentors and मेरे दिमाग में आया चलो यार न्यूज़लेटर से ट्राई कर लेते हैं. पहले एक 3-4 हफ्ते निकल चुके हैं जिसमें हम सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं और उसका मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. मैक्स छोटे छोटे कोई कैंपेन चल रहा है उसकी वीडियो बना दी कि कैंपेन ऐसे ऐसे हुआ, ये दिमाग पीछे गया, ऐसा गया वैसा गया. एंड उसके बाद याद आया न्यूज़लेटर से निकाल देते हैं. फिर बाकी के 10 हफ्ते बाकी के जितने भी हफ्ते पड़े थे 4-5 हफ्ते थे आई गेस, उस पर न्यूज़लेटर करा एंड देन वी पुट इट आउट. ये था हमारा लिंक्डइन एक्सेलरेटर ग्रुप. बेस्ट पार्ट विच केम आउट ऑफ लिंक्डइन एक्सेलरेटर was the network. Like this 199 people. I told you in the starting कि मेरे को ऐसे पहली झिझक होती है, वहाँ पे झिझक नहीं हुई because it was a group. So वहाँ पे आराम से सबसे बातें हो रही हैं. Some of them I'm still connected with. Like most of them I'm still connected with. So वो वहाँ पे अच्छा था कि एक networking opportunity बहुत सही से मिल गई. Plus it was a boost in the profile. जैसे ऐसे आ रही है ना प्रोफाइल, ऐसे हो गई. समझ गया. प्लस नेटवर्क भी वैसे ही हो गया. लाइक अर्लियर आई वाज एडिंग पीपल हु वर एंट्री लेवल्स. नाउ आई एम एडिंग पीपल हु आर लाइक ईदर प्रोज और एक्सपर्ट्स और आर लाइक काइंड ऑफ सुपीरियर, जिनसे मैं सीख सकती हूँ. पहले उनको ऐड करी थी जिनको मैं सिखा सकती हूँ. सो अब आई एम लाइक कि मुझे फीड जिनकी देखनी है, लाइक द कंटेंट आई एम ट्राइंग टू कंज्यूम is of those people who are already experts, like from whom I can learn, and the people who want to learn from me can obviously connect with me. वो मेरे content से सीख सकते हैं. So this is how I'm kind of trying to maintain a balance. तो अभी there'll be people will be saying कि मेरी request नहीं accept करी है. So that is probably because कि मेरे को टाइम नहीं लगता बस इतने सारे रिक्वेस्ट मैसेज आने में. बिकॉज you know entrepreneurship is a difficult thing. You have been a 2 times entrepreneur yourself. Yeah, that's true. It's a lot more hectic. Yeah. 100%. Like one day you know everything and the other day you know nothing. Yeah, that's true. 100%. Rather day भी बहुत ज़्यादा हो गया. Moments. Sometimes you are just excited about the stuff. हो गया अरे चल गया अब धूम है. अगले 1 मिनट आ रहे यार कुछ नहीं हुआ. Rather कई बार तो ऐसे भी होता है. Like sometimes I'm like कि I'm more of a pen paper person. कि मैं pen paper पे लिखता हूँ. ये वाला होता है. Probably. तो I'm a pen paper person. तो मैं कुछ कर रही हूँ, like I'm making some content or I'm doing something कि community में ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे. ये सब कर रही हूँ क्योंकि अभी तक ऐप नहीं बना है, तो ऐप की तो वेट ही चल रही है.
तो यहाँ पे आई एम डूइंग समथिंग और बीच में कोई और चीज पे ध्यान चला गया कि ये चीज भी करने वाली है, वो चीज का सोचने लग गई, ये भी भूल गई, वो भी नहीं हुआ. True. So then I'm like ये क्या हो गया. True. अभी वो तो कर लेती हूँ मैं पूरा इससे तो. और जब वो कर रहा होता है उस टाइम पे लग रहा होता है ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं आराम से कर लूंगी, आई नो दिस. तो बाद में एक ही सेकंड बाद होता है ये किसने लिखा, मैंने तो नहीं लिखा ये बहुत बार होता है. और ट्रू 100%. लाइक यू सेड लाइक कि लिंक्डइन पे जब स्टार्ट करा था यू स्टार्टेड रीचिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने जब स्टार्ट करा था मैंने 2019 में कर दिया था. सो मेरे साथ अलग ही सीन था. मैं पहले दिन से मेरे को कुणाल वाल विजय शेखर शर्मा चाहिए. ठीक है. मैंने 3 महीने किसी और को रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं इनके सिवा एंड कोई भी नहीं आया. फिर हाउ डिड यू एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ठीक है यार ये लोग नहीं आएंगे, दूसरों के पास चलते हैं. आई वाज लाइक 2019-20 वर द पीरियड लाइक विच आई चेंज कम्प्लीटली. ठीक है. सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत था उस समय. सो आई वाज लाइक कि जो कंटेंट वाला है ना कि जिसका कंटेंट कंज्यूम करना है, आई वाज वेरी मच सीरियस. तो उससे रियलाइजेशन मेरे को तब हुआ क्योंकि अब मेरे को फॉलो तो हो ही गया था ना, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई, तो उनका कंटेंट कंज्यूम हो रहा था. तो वहाँ से रियलाइजेशन आ रहा था ठीक है ये ज़्यादा बड़ा लोगों को अप्रोच कर दिया पहले, तो लेट्स स्टार्ट बिल्ड सर्टेन ऑडियंस. तो फिर उसके बाद से और रीच वीच करना थोड़ा बहुत स्टार्ट करा. दैट्स रियली ट्रू कि उसमें ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जाता है. ठीक है. वो चीज़ होती रहती. एंड ऑल्सो अभी हम तो बात कर रहे थे उसके रिगार्डिंग कि यू आर बिट शाय और यू आर बिट यू नो यू डोंट रीच आउट टू पीपल बिकॉज यू फील लाइक यू नो कि मतलब वो हिचक रहती है. ठीक है. पहली चीज है हाँ that kind of stuff. So why that? I don't kind of know the reason very well, but I think the major reason would be कि I am kind of intimidated by the profile कि यार मेरी प्रोफाइल में ऐसा क्या है कि वो मेरे को रिप्लाई कर देंगे. ऐसा दिमाग में आ जाता है. समटाइम्स वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है वो आ जाता है. समटाइम्स I'm like when I am in a like a very high ऐसे high on emotions, I am sending voice notes to everyone कि कौन है, I can send it to anyone. ऐसे वाला सीन रहता है. 100%. But on the other times, most of the times rather, I am of the opinion कि यार वो मेरे को क्यों रिप्लाई करेंगे. Like उनके पास इतना टाइम थोड़ी है मेरे को रिप्लाई करने बैठेंगे. Then sometimes I think like जब मैंने आपको मैसेज करा उस टाइम पे I was like यार कर ही रहता है, मैक्सिमम क्या ही हो जाएगा. मैक्सिमम बंदा ये कहता है कि तेरे साथ नहीं करनी बात को बात. बट ऐसा कुछ नहीं था जो ऑडियंस से ठीक है. It was not anything of that sort has happened with me only once. वो भी जब मैं नई थी मार्केटिंग के अंदर. I was learning how to write an email. तो मैंने आउटरीच के फॉर्म में एक these top 25 कंपनीज होती है ना, तो टॉप 25 कंपनीज होती हैं उनके एक सी लेवल एग्जीक्यूटिव को भेजा था. एंड एक मेल भेजा, दूसरे में फॉलो अप भेज दिया. लाइक कुछ दिनों के बाद ऑब्वियसली वो फ्लो था पूरा बनाया हुआ था मैंने ऑटोमेशन वाला. एंड उनका रिस्पॉन्स आया था, इतना गंदा रिस्पॉन्स आया था ऐसे दिल को. इतने 2 दिन तक आई वाज लाइक यार मेरे को मेल भेजनी चाहिए या मैं एडिट कर दूँ. लाइक इतना ज़्यादा ही वाज टू मच हार्श. लाइक वो इतने तीखे वर्ड्स थे ना. उसके बाद फिर आई मेड अ पोस्ट कि जब भी आप किसी को रिप्लाई करो ना ऐसे प्यार से करना चाहिए. दूसरा बंदा भी इंसान है और प्रोबेबली जितना आपका एक्सपीरियंस उतनी उसकी एज भी नहीं होगी. That's true. That happens. But उसके बाद फिर I started looking up for my मेरी लैंग्वेज a lot कि किस टाइप से like keeping myself into his shoes. But मेरे को वो भी इतना बुरा नहीं लग रहा था जो मैंने उस टाइम पे लिखा था कि यार पोलाइट से वैसे ही पूछा था. ठीक ही था. ठीक ही था, इतना भी बुरा नहीं था जितना मेरे को डांट दिया गया. Exactly. But वो भी जरूरी होता है you know to know कि कैसे रिप्लाई नहीं करना है कभी किसी को. वो चीज़ है like there are 2 options to achieve something. Know what doesn't work and know what works. तो एक तो ये चीज़ पता चली कि क्या चीज़ काम नहीं करती है.
क्या चीज काम, एक तो ये भी है ना कि देयर आर आल्सो टू वेज टू अचीव सक्सेस. एक तो पॉजिटिव वे होती है, एक नेगेटिव वे होती है. एक पॉजिटिव इमोशन से फ्यूल की जाती है, एक नेगेटिव इमोशन से फ्यूल की जाती है. जस्ट इमेजिन वो नेगेटिव इमोशन से फ्यूल हो गई. दैट इज द होल रीजन आई सेट अप an entire agency. That's true, 100%. That's true. So अब फ्यूचर का क्या प्लान है? How does future looks like to you? Future looks like कि I've currently applied to YC. So 18th November is the last date. So we are at the moment waiting for YC to respond. तो अगर YC का response नहीं आता है, like if it's a no from YC, so what we'll go ahead with is for our beta version to come out. Beta के अंदर बहुत सारे features enhanced हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, like mentors आ रहे हैं, leader boards आ रहे हैं, और भी बहुत सारे features आ रहे हैं जो कि genuinely काम के आएंगे. ये तो सिर्फ मॉडल चेक करने के लिए है जो MVP निकाल रहे हैं. दैट इज बेसिकली टू चेक द मॉडल कि ये चीज़ मार्केट में पहली बार आ रही है, स्पेशली फॉर सिंगर्स. तो हमें पता नहीं है कि विल दे एक्चुअली बी रेडी टू टेक अप सच अ मॉडल, या हमें शिफ्ट करना पड़ेगा. सो वो चेक करने के लिए अभी MVP आ रहा है. बट बीटा लाने के लिए, लाइक द बीटा टू ब्रिंग इन द बीटा वर्जन विद enhanced features, what we need to do, we would need to raise our pre-seeds. That's cool. उसके बाद pre-seed के बाद we would launch out our features, जो कि I have high hopes on those features. ये वाला literally I was telling my co-founder कि क्या सीधा वो launch कर देते हैं ना, वो ज़्यादा सही है. And he was like पहले एक बार वो check करना ज़रूरी है. True, that's 100%. ठीक है, यही check कर लेते हैं फिर. इसको चेक करने दो. Like I get very impatient at times. कभी and in that sense my co-founder balances it very nicely. He is a very patient man. वो मेरे को भी ऐसे शांत कर देता है, चुपचाप बैठ जा, इतना भी हाइपर होने की जरूरत नहीं है. मेरा सेम था. I am kind of also an impatient guy. So मेरे फाउंडर का ऐसा नहीं आता था कि चुपचाप बैठ जा, क्योंकि he is an introvert. So I overpower him. I am an extrovert. So उसका आता था, तू कर ले जो करना है. तू कर ले जो करना है, बस शांति से करियो. क्योंकि आई एम लाइक, मेरी कभी कुछ टीम को नहीं पता, कई बार चीज़ें सडनली केम आउट होती है, मैं सीधा लिंक्डइन पे अनाउंसमेंट हो जाती है कुछ भी. सो दैट्स काइंड ऑफ स्टफ हैपेंस. सो मेरे को अभी 5 मिनट पहले कोई आइडिया आया, इट विल गो ऑन लिंक्डइन लाइक जस्ट इन 5 minutes. कोई डिज़ाइनर है, थंबनेल डिज़ाइनर, उसके पास उसको पता भी नहीं कि थंबनेल कब बन गया, किसने बना दिया, और वो चला गया. सो दैट हैपेंस. सो या उसका ये होता है बस कि कहीं पोस्ट मत करियो, तेरे को जो करना है तू कर. सो दैट्स in that sense me and my co-founder have a very nice team. Like there are cases when I overpower him and there are cases when he overpowers me. कि नहीं, ऐसे नहीं तो नहीं, क्यों नहीं, then he'll give the logic. And then I'll do. Yeah, that's happened sometimes, but most of the time अपने साथ वैसा ही चलता था. कि वो कहता था, जैसे कुणाल शाह वगैरह ही हो गया, ऐसे मैंने और कईयों को रीच करा था. लाइक आई कॉल्ड विजय शेखर शर्मा. ऑलराइट. सो फ्रीकिंग गाय. आई फॉन्ड ऑफ कॉल उठाई नहीं, कॉल नहीं उठाता, वो पुराना नंबर था तो किसी और ने उठाया था. सो I was like, क्या पता उठा लियो. निखिल कमात ने उठा ली थी. Nice. What did you talk about? Bringing on podcast and he was like, okay dude, कर लेते हैं, मेरे को एक बार मेल ड्रॉप कर दो. And I'm like, all right. अब जिस दोस्त से I got the number, because वो angel investor वगैरह है, so maybe he has like angel investor. अब उसके पास मेल नहीं है. और निखिल को मैंने कह दिया ठीक है मेरे पे मेल है. I am stuck over there. दोबारा से कॉल, भैया आपकी मेल क्या थी, हमसे गुम हो गई. और नाउ लाइक आई एम स्टक ओवर देयर. ये वेस्ट रहता है. लिखते हैं उस टाइम जब ना मेरे को ऐसे लोगों की शक्लें याद हैं, लोगों के नाम नहीं याद. हम लोग यहाँ मीट पे थे, तो देयर वाज दिस एक्टिविटी वी वर डूइंग कि हम एक दूसरे को ना इतने से कार्ड्स शेयर कर रहे थे विद things about personal branding written on it. ठीक है, तो कईयों की तो लाइक एक तो मैं पहुंची वहाँ लेट थी,
बिकॉज मैं सीधा पंजाब से दिल्ली सीधा सिर्फ वो मीट अटेंड करने गई थी. सो आई गॉट लेट बिकॉज एक तो ट्रेन्स, दूसरा बारिश का मौसम. तो ट्रेन लेट हो गई तो मैं पहुंची लेट, तो मैं सबसे मिल भी नहीं पाई. मैं अभी ऐसे स्टार्टिंग वालों से मिली हूँ एंड पीछे से गेम चालू हो गई, लाइक ये वाला एक्टिविटी चालू हो गई. एंड जिसके साथ मैंने पार्टनर किया है मुझे उसका नाम नहीं पता. So what we are doing is spell out your name, please. सही सही. We were like, spell out your name, please. I didn't want to write a wrong name, you see. फिर उनके उससे टच ठीक है, ये नाम था. सही है. I got a one new hack to get the name. Exactly. बहुत सही hack है, like पता भी नहीं लगता. Almost everyone asks for the spells कि गलत ना हो जाए. That's true, 100%. ये कर सकते हैं. हैं. बट अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो समझ लेना उसको आपका नाम नहीं. आपका नाम काफी कैसे कॉमन नेम है हिमांशु, सबको स्पेलिंग पता होती है, बट स्टिल आजकल बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं नाम के. इट कैन Gen Z names. हाँ, True. there are lot of variations of one particular name कि पता भी नहीं चलता इसका असली नाम, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से किया है, ये पहला नाम क्या था जिसका अलग अलग वेरिएशन है. ये वैसे नाम है जैसे वो 3 Idiots में नहीं था, उसके 2 दोस्तों के नाम मिला के डिक्शनरी में से ढूंढो. काइंड ऑफ ऐसा स्टफ. ऐसे वाला सीन होता है. सही है. ऐसे मतलब ये किसी को इससे तो फिर भी कोई सीख सकता है कि अगर उसको नाम समझ नहीं आया तो उसने बोल दिया, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उससे नहीं सीखना कुछ भी. तो सीन क्या था कि एक बार हम वी वर गोइंग इनटू अ मीटअप, लॉन्ग स्टोरी बैक, ठीक है. तो मैं था, मेरा एक और मतलब वो फाउंडर था, उसकी मैं मदद करता रहता हूँ ऐसे ही. सो वो था साथ में, लाइक 2 more फाउंडर्स वर देयर. एक को मैंने इन्वेस्टमेंट दिलवाई थी और एक की मैं वैसी मदद करता रहता हूँ. सो वी ऑल 3 वर देयर एंड उन्होंने जो डेस्टिनेशन भेजी थी मीटअप की वो गलत थी. अब जहाँ एक्चुअल में जाना था इट वाज लाइक 15 किलोमीटर्स अवे. हम चले गए मेट्रो से. अब मेट्रो से वहाँ पे 15 किलोमीटर्स और वो अंदर वो मेट्रो का रास्ता नहीं है. हम वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट. वी गॉट इनटू एन ऑटो, वहाँ पहुँच गए. मीनवाइल जो दूसरा दोस्त था, स्टार्टअप फाउंडर था, दोस्त कह लो फाउंडर कह लो, ठीक है. अब उसने कॉल करा उनको कि आपने गलत लोकेशन भेज दी, ये वो, we are coming from cab, it's charging us 1200. And all of they are saying we will refund it sir, we will refund it. We'll refund it. And we got over there, the thing happened कि सब कुछ तय हो गया था कि he will refund all the travel incoming as well as outgoing, ठीक है. अब जो वहाँ से घर जाएंगे वो भी वो पे करेंगे. So we were like अरे सही है, तू बढ़िया बंदा है. वहाँ गए. अब ऑटो वाले ने सीधा उसके मुंह के आगे रोकी उस बंदे के जिस बंदे से कॉल पे बात हुई थी. नाउ वी ऑल 3 आर कमिंग आउट ऑफ एन ऑटो और उसे हमने बोला था कैब ली है, 3 जने हैं, 1200 ले रहे हैं, ठीक है. अब बात ये थी कि वो बंदे की मेरे से बात नहीं हुई थी, दूसरे फाउंडर से नहीं हुई थी, एक से हुई थी. एंड अब वो सबसे लास्ट में उतर रहा है छुप छुप के दूसरी साइड से कि I can imagine the scene. I can just imagine. तो वो अलग सीन हुआ था पूरा का पूरा. It's not to something take away from, just an incident that happened. But वो बेस्ट सीन है कि जब आपकी ना ऐसे आपको पता है कि अब तो हो गई. अब इसका कोई savage, इसका कोई comeback नहीं है. And we are like मेरे साथ क्या होता है कि जैसे वो ही फाउंडर है. सो आई वॉज इन्वाइटेड बाय कॉलेज KIET एज अ जज. तो मैं उसको साथ ले गया था, वो भी जज बन गया, ठीक है. तो अब यहाँ पे दे इन्वाइटेड मी एज एन इन्वेस्टर एंड हम तीनों रजिस्टर्ड एज एन इन्वेस्टर. ठीक है. And now he is running around for 1200 rupees. That too, that auto took around 150 रुपए. He must be listening at the moment. और वो कहेगा ये हुआ था उस दिन असलियत में. जब भी मैं नाम नहीं ले रहा ना उसका. पता तो उसको चल गया होगा. हाँ उसको सब पता है, वो उसको कमेंट आ जाएगा उसका जब ये लाइव होगा पॉडकास्ट. मैं उसको स्पेसिफिकली शेयर करूँगा कि इसमें आपकी स्टोरी मेंशन्ड है, इतने पॉइंट पे जाके देख लो. You got covered. You got featured. Yeah. पीछे FT डाल के सबके नाम. LinkedIn पे टाइटल मिल गया.
featured in that startup guy. featured in inside my mind. Yeah. सही है. ऐसे वाले एक्सपीरियंसेस ना, मतलब समथिंग कि आप इसमें कोई कमबैक भी नहीं कर सकते हो एंड हो जाते हैं कि बस हो गए, अब तो हो गई. It's fun experiences that usually Yeah. happens, like कि बढ़िया एंड है. ऑल्सो कि दिमाग में वो वाले एक्सपीरियंसेस कि ये नहीं करना है आगे से, अब ऐसा नहीं करना चाहिए. उसके दिमाग में आ रहा है अब अगली बारी से ऑटो बाहर उतार. ये बेटर हाँ, ये आइडिया ज्यादा अच्छा है. तो कि बाहर गली के बाहर उतर जाए या रोड के थोड़ी सी दूर उतर जाए, वहां से पैदल चल के आ रहे हैं. एग्जैक्टली बल्कि उसको ऊबर का वो भी आ गया था, उसके पास बिल भी उसने बना लिया था कि बिल दिखाना है ना उनको. तो एक पर्सन था जो वहीं पे उतरा था, एक और जना फाउंडर. उसकी पकड़ ली. ही केम आउट ऑफ ऊबर. सो वी ब्रो आजा यहाँ पे नहीं है ये वो, कैसे ऊबर से आया है. वो उसने उससे बिल मांग लिया. एंड ही केम फ्रॉम फार अवे. दैट इज सुपर नाइस. सो देखो यू कुड हैव सेड कि ना हमने ऐसे आधा रास्ते में उबर ली, उबर का टायर पंचर हो गया, सो हमें ऑटो लेना पड़ा. ये देखो उबर का बिल. सही बात है. ऊबर का बिल था उस लोकेशन तक जहाँ पुराना था. वो कहेगा वहाँ तक ऊबर से आए. वो उसके ऊपर ना उसको लाइक दिस वी यूज्ड टू डू इन बैक इन स्कूल टाइम एंड आल्सो जब सीए की एकेडमी चल रही होती थी तो हमारी पार्किंग चार्जेस लगते थे. तो हम क्या करते थे, जहाँ से डेट लिखी होती थी ना, जहाँ पे डेट लिखी होती है वहां से उसको फोल्ड कर दो अच्छे से, हल्का सा पानी लगा दो, वापस खोलो, ऑलमोस्ट मिट गया होता है. ये कर दो. सही है. एंड उसको हम बचा के रख रहे हैं. तीसरे दिन तक उस बेचारी चिट्ठी गई ऐसे 4 कतरे हो गए होते थे कि यार अब तो नहीं लेनी पड़ेगी. ये सही है. हमारा ऐसा नहीं था उसमें. हम तो सर की गाड़ी के पीछे खड़ी कर देते थे स्कूटी, और वो अलग बात थी, उनका स्टाफ चिल्लाता रहता था स्कूटी किसने खड़ी कर दी, ये हटाओ वो हटाओ. तो इसी बहाने क्लास में वॉक हो जाती थी. नहीं, हमारी क्लासेस ऐसी नहीं ना थी. हमारी क्लासेस वैसे सैटेलाइट वाली थी. अच्छा. वी हैड अ रूम, वी हैड अ फुल इंस्टीट्यूट, वहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, हमारा सैटेलाइट बेस्ड चल रहा है. ऐसे था हमारा. यू आर फ्रॉम दिल्ली राइट? नो, पंजाब. अच्छा, cool. वो बंदा भी पंजाब से. जिसके साथ हुआ ये वो क्या जिसने करा है जो. करा. हाँ, हमारे दिमाग ही बहुत चलते हैं. सही है.